स्वामी महाराज की जय। बाप साईं की सदाई जय जय। थोड़ा दिवस पहला मैं महाराष्ट्र ने प्रश्न કર્યો કે ગુરુનું ધ્યાન કેવી રીતે કરવું. બહુ સુંદર જવાબ આપ્યો. ગુરુ જે દેખાય છે એનું ધ્યાન ન થાય. ગુરુ જે દેખાય છે એ તો હાડકા માંસ જામ નો થેલો છે દેખાય છે. ગુરુ પોતાના વિશે જે સ્વરૂપનું વર્ણન કરે છે એનું ધ્યાન થાય. ગુરુ એટલે જે નિત્ય શુદ્ધ મુક્ત મુક્ત સ્વરૂપ છે એનું ધ્યાન થાય. ગુરુજી પોતાની ઓળખાણ પોતાની મેસેજ આપે છે કે હું સત્યમ જ્ઞાનમંતમ બ્રહ્મ છું. એ જ એમની સાચી ઓળખાણ છે. છતાં પણ આપણા મનમાં હંમેશા જાણવાની ઈચ્છા થાય છે મહારાજ ક્યાંથી આવ્યા છે, ક્યાં જન્મ થયો, કેવી રીતે વિદ્યા પ્રાપ્ત કરી, એમના ગુરુ કોણ ઇત્યાદિ વાત આપણા માટે મહત્વપૂર્ણની બની રહે છે. કારણ કે એક સાધક પણ સાધના માટે આ બધી માહિતીને ઉપયોગી માને છે. માટે પ્રાતસ્મરણીય ગુરુદેવ અનંત શ્રી મહારાજ શ્રી અખંડાનંદજી મહારાજનું નામ છે. આધ્યાત્મિક જગતમાં કોણ એમને નથી જાણતું. તેમનો ત્યાગ, તપસ્યા, ભક્તિભાવ, વૈદુષ્ય, બ્રહ્મનિષ્ઠ એવં સરળ સુબોધ સરસ પ્રવચન શૈલીની ખ્યાતિ સર્વત્ર સંપૂર્ણ ભારતમાં ફેલાયેલી છે. ભારત વર્ષના પવિત્ર વારાણસી મંડળના ગંગા તટ પાસે મહરઈ ગામમાં સરયુ પારીણ બ્રાહ્મણ વંશમાં મહારાષ્ટ્રનો જન્મ થયો. શ્રી વિગ્રહનો પ્રાગટ્ય થયું હતું. તેમના પિતા પિતામહ સનાતન ધર્મી સદાચારી તથા વેદશાસ્ત્રોના વિદ્વાન હતા. વારાણસીના અધ્યયન વખતે પ્રસિદ્ધ વિદ્વાન અને સંતોનો સમાગમ થયો. ગોરખપુરમાં કલ્યાણના સંપાદક મંડળમાં 7 વર્ષ સુધી નિષ્કામ સેવા આપી. સંન્યાસ લઈ શ્રી કુડિયા બાબાજીના સાનિધ્યમાં વૃંદાવન રહ્યા. મહારાષ્ટ્રની આ એ વિશેષતા છે કે તેઓ નિર્ગુણ બ્રહ્મના નિરૂપણ વખતે વેદાંત તેમજ સગુણ બ્રહ્મના નિરૂપણ સમયે શુદ્ધ ભક્તિભાવનો ઉપદેશ કરે છે. શ્રીમદ ભાગવતની સાથે જીવનનો અત્યંત ઘનિષ્ઠ સંબંધ રહ્યો છે. છલકતા આનંદ અને આહલાદિતો મહારાજથી સાક્ષાત પ્રગટ મૂર્તિ છે. જે કોઈ નિકટતાથી તેમના સંપર્કમાં આવી ચૂક્યો છે તે નક્કી તેમની પવિત્ર તેમજ સ્વચ્છ સ્નેહ રસધારામાં અવગાન કર્યા વગર રહ્યો નથી. આ રીતે આ છે મહારાષ્ટ્રનો ટૂંકો પરિચય. આપણી પાસે સમય ઓછો છે અને આપણે ઘણો લાભ લેવાનો છે. આજે સાંજે, કાલે સવાર સાંજ અને પરમદે સવારના ને આપણે સત્સંગનું માધ્યમ રાખ્યું છે પ્રશ્નોત્તર. આપને જે પ્રશ્ન હોય, ખરેખર મનમાં જે પ્રશ્ન હોય, આધ્યાત્મિક પ્રશ્ન, એ લખીને મને પહોંચતા કરશો તો અહીંયા જેમ સમય હશે દરેક પ્રશ્ન પૂછવાનો હશે અને મહારાજ શ્રી એનો સુંદર જવાબ આપને આપશે. प्रथम प्रश्न है, परम पूज्य महाराज जी के चरणों में नमस्कार. सत्संग किसे कहते हैं? नारायण 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 नारायण. सत्संग का अर्थ है
कि जो सद वस्तु है, सत्य है, उसका संग किया जाए, माने वो परमेश्वर के रूप में है तो उसका संग किया जाए, आत्म रूप में है तो उसमें स्थित हुआ जाए, अनजाना है तो उसको जाना जाए। तो सत्य जो है उसके संग को ही सत्संग कहते हैं। गीता में और शब्दों का कोश, उसकी डिक्शनरी हो या न हो, ये सत शब्द का कोश गीता में दिया हुआ है। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मणस्त्रिविध स्मृता में आप देखें, सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते। जो सच्ची सत्ता है, अखंडित अबाधित आत्मरूप, उसको सत्य कहते हैं, सद्भाव। माने जिसको कभी झुठलाया न जा सके, जिसको कभी मिथ्या न किया जा सके, जिसको कभी छोड़ा न जा सके, जो बाधित न हो सके, उसको कहते हैं सत्य। ऐसी कौन सी वस्तु है? कुछ लोगों ने संसार को ही ना कर दिया कि नहीं है। यहां तक कि कुछ लोगों ने ईश्वर को ही ना कर दिया, बोले नहीं है। लेकिन ऐसा भाई का लाल दुनिया में कभी कोई न हुआ, न है, न होगा। तो ऐसा बोल सके कि मैं नहीं हूं, या ऐसा सोच सके कि मैं नहीं हूं। क्योंकि जो बोलेगा वो तो है ही सत्य है। जो सोचेगा कि मैं नहीं हूं, वो झूठ मूठ सोच रहा है कि मैं नहीं हूं, दरअसल तो है ही। तो सत्य क्या है? अपना आत्मा। अब वो कितना बड़ा है, कैसा है, क्या है, ये बात लोग कम जानते हैं। जानते तो हैं, परंतु बहुत कम जानते हैं। कोई अपने को हड्डी मांस काम का पुतला मानते हैं, तो कोई अपनी जाति मानते हैं, तो कोई संप्रदाय मानते हैं, तो कोई प्रांत मानते हैं, कोई ब्राह्मण क्षत्रिय मानते हैं, कोई सन्यासी गृहस्थ मानते हैं, कोई विद्वान बुद्धिमान मानते हैं, तपस्वी समाधिस्थ मानते हैं। परंतु आत्मा का जो असली स्वरूप है, जो बेहोशी में भी रहता है, समाधि में भी रहता है, सुषुप्ति में भी रहता है, स्वप्न में भी है, जागृत में है, उसको वस्तुतः सत्य कहते हैं। लोग कल्पना करते हैं कहाँ स्वर्ग है, कहाँ वैकुंठ है, कहाँ गोलोक है, कहाँ साकेत है, ईश्वर निराकार है, साकार है, अंतर्यामी है। पर इस 3.5 हाथ के शरीर में रहने वाला जो अपना आपा है, आत्मा है, उसके बारे में नहीं जानते। ये तले अंधेरा, कितने बादशाह हुए, कितने लाट साहब हुए, किस देश का क्या इतिहास है, ये सब तो लोगों को मालूम रहता है, परंतु मैं क्या हूं ये मालूम नहीं रहता है। और इसके मालूम हुए बिना
अपने कर्तव्य का भी ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता है। जब आदमी जानेगा कि मैं सिपाही हूँ, तो चौराहे पर खड़ा होके वो यातायात का नियंत्रण करेगा। यदि वो जानेगा कि मैं डॉक्टर हूँ, तो चिकित्सा करेगा। तो अपने मैं को जाने बिना जो हम अपने कर्तव्य मान बैठते हैं, संबंध मान बैठते हैं, अभिमान कर बैठते हैं, वे सब के सब अज्ञान की कक्षा में आ जाते हैं। दूसरी बात है, सत्संग का अर्थ है अपने हृदय की पवित्रता, साधु भाव। आप विचार करके देखें, जो संग्रह करते हैं, इकट्ठा करते हैं, वो सत्य है कि नहीं? जो भोग करते हैं वो आपके हिस्से का अंश सच है कि नहीं है? जो मनोराज्य करते हैं, आगे ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, वो सत्य है कि नहीं? जो आदत आपके जीवन में पड़ गई है, वो सत्य है कि नहीं है? जो काम आप करते हैं वो उचित है कि उचित अनुचित का विचार किए बिना ही काम करते हैं? आप गीता पढ़ते हैं, भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य सामने से युद्ध करने के लिए तैयार है। धर्मराज युधिष्ठिर और अर्जुन के रथ पर बैठे हुए श्री कृष्ण ही युद्ध की प्रेरणा दे रहे हैं, परंतु वो व्यक्ति था अर्जुन जिसने कहा कि हम बिना सोचे विचारे, विचार किए बिना हम कोई भी काम नहीं कर सकते। हम जो काम करें उसमें हमारे शरीर का स्वास्थ्य ठीक रहे, चरित्र पवित्र रहे, इंद्रियों में संयम रहे, मन में सद्भाव रहे, बुद्धि में विचार रहे, अहंकार नहीं आवे, इस बात पर दृष्टि रख के हम काम करते हैं क्या? तो यदि इन चारों बातों पर दृष्टि रखकर काम करते हैं तो आपके जीवन में सत्संग आ गया। तो एक तो आत्मा सत है, उसका संग सत्संग है। दूसरे अंतःकरण में जो हमारी सद्भावना रहती है, सद्विचार रहता है, उसका रहना सत्संग है। और यज्ञ करना, दान करना, तपस्या करना, इसका नाम सत्य है। कोई भी काम जो हम ईश्वर के लिए, लोक हित के लिए, माता पिता की सेवा के लिए, अपने हृदय की पवित्रता के लिए, तत्व ज्ञान के लिए करते हैं, वो काम सत हो जाता है और उसका संग ही सत्संग है। ये संग, भगवान का संग, एक ईश्वर के साथ हमारी आसक्ति है। आपको मालूम है इस संस्कृत भाषा में संग माने साथ नहीं होता। हिंदी में तो संग माने उनके संग वे जा रहे हैं, उनके संग वे रह रहे हैं, संग माने साथ होता है। पर संस्कृत भाषा में संजनम संग, आसक्ति का नाम संग होता है। संसार में जितनी भी अच्छाई अब तक कहीं किसी में आई है, वो सत्संग से आई है। भगवान के प्रति आसक्ति होने से आई है या संतों के प्रति आसक्ति होने से आई है? जो भी भला हुआ है दुनिया में, वो सत्संग से ही
भला हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मति कीरति गति भूति भलाई, जो जहि जतन जहाँ जब पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव, लोकम वेद न आन उपाऊ। लोक में या वेद में कहीं भी दूसरा उपाय नहीं है। आपको बुद्धि चाहिए तो अपने से बड़े बुद्धिमान का सत्संग कीजिए। आपको कीर्ति चाहिए तो जो बड़े बड़े कीर्तिमान हैं उनके जीवन का अध्ययन कीजिए। आपको सद्गति चाहिए तो संतों का संग कीजिए। वैभव चाहिए तो जिन्होंने दरिद्र से दरिद्र अवस्था में पैदा होने पर भी अपने परिश्रम से, पौरुष से, बुद्धि से अपने को धनवान बनाया है, उनका संग कीजिए। यदि आप किसी भी प्रकार का हित चाहते हैं तो सत्संग कीजिए। सत्संग से बड़ी दुनिया में और कोई वस्तु नहीं है। भागवत में कहते हैं, संत संगस्य देशजम। संत जो है वो आसक्ति की औषधि है। औरों से आसक्ति करोगे तो फंसोगे, बंधोगे, रोना पड़ेगा। प्रियम त्वाम रोच्य, किसी के साथ बंध जाओगे, लटके लटके फिरोगे। ये सत्संग ही है जो बंधन से छुड़ाता है। किसी का विरह होगा, कोई विश्वासघात करेगा, किसी से तुम प्रेम करोगे वो तुमसे नहीं करेगा, रुलावेगा, रोना पड़ेगा। इसलिए जीवन में जो सत्य है उसके संग करना चाहिए और ये जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो आप शरीर से सत्य का संग्रह कीजिए, सत्य का भोजन कीजिए, सत्कर्म कीजिए, सत्य से प्रेम कीजिए, सबके प्रति सद्भाव रखिए, सद्विचार कीजिए, सत स्थिति में रहिए और अपने सत स्वरूप त्रिकालाबाधित आत्मा को ब्रह्म रूप में जानिए। ये सब सत्संग शब्द का अर्थ होता है। अब सत्संग किसे कहते हैं? ये आप अपनी रुचि से, अपनी योग्यता से, अपनी प्रवृत्ति से तौल लीजिए और आपके लिए जो हितकारी हो उसी का संग कीजिए। इसी का नाम सत्संग है। रागत द्वेष की वृत्ति कैसे होती है और इनकी आत्यंतिक निवृत्ति किस प्रकार हो सकती है? पहले थोड़ी थोड़ी निवृत्ति होने दो, बाद में आत्यंतिक निवृत्ति करता। आत्यंतिक माने हमेशा के लिए और पूरी तरह से। राग द्वेष की निवृत्ति होगी तो उसको आत्यंतिक निवृत्ति कहते हैं। आत्यंतिक माने जिस निवृत्ति के बाद फिर राग द्वेष ना है। निरुत्तर निवृत्ति, निरतिशय निवृत्ति। पहले देखो कि आपके जीवन में किस चीज की कमी मालूम पड़ती है, तो उसकी प्राप्ति जिससे होगी उससे राग होगा, और जो आपकी इच्छा की पूर्ति में बाधा डालेगा उससे द्वेष होगा। जिससे सुख मिला है, मिलता है और मिलने की आशा है, उससे राग होता है। हमारा दिल, हमारा मन रंग जाता है। रंजनाद रागः।
जैसे हम कपड़े को किसी रंग में रंग लेते हैं, और इसी प्रकार हम अपने हृदय को किसी राग से, किसी रंग से रंग लेते हैं। थोड़ा आप ध्यान देंगे तो मालूम तो पड़ेगा कि हम सुंदर बनाने के लिए अपने को रंगते हैं। और स्नो पाउडर शरीर में क्यों लगाते हैं? चिकना करने के लिए। होठ पर लिपस्टिक क्यों बनाते हैं, लगाते हैं? लेप औष्ठिक, ये औष्ठिक लेप जो है वो क्यों है? जब अपने होठों में रंग की कमी मालूम पड़ती है, आकर्षण की कमी मालूम पड़ती है, ऐसा लगता है कि इसको देखकर दूसरे लोग आकृष्ट नहीं होंगे, तो उनको चमकाने के लिए ऊपर से रंग लगा दिया जाता है। ऐसे अपने हृदय में जब किसी दूसरे से सुख मिलता हुआ मालूम पड़ता है, तब उसके साथ हम जुड़ जाते हैं और उसके रंग में रंग जाते हैं। सुखानुशयी रागा सुखम अनुशेते, जहां जहां सुख मिलता हुआ मालूम पड़ेगा वहां राग हो जाएगा। देखो, अपने को तो हम जानते हैं कि कितने दोष हैं हमारे अंदर, लेकिन जब कोई तारीफ करने लगेगा कि आप में ये गुण है, ये गुण है, ये गुण है, आप तो इतने अच्छे हैं, तो तारीफ सुन सुन के हमारे कान रंग जाएंगे, सुनने का मन होगा, हमारा मन रंग जाएगा और वो आदमी बहुत अच्छा लगने लगेगा और हम चाहेंगे कि ये हमको मिलता रहे, मिले, और इसी से हम राग करेंगे, प्रेम करेंगे। इसी प्रकार जिससे दुख मिलता है उसके प्रति द्वेष होता है। दुखानुशयी द्वेषा, जिससे हमको दुख मिलता है उससे द्वेष हो जाता है। द्वेष माने ज्वलनात्मक चित्त वृत्ति विशेषा। हमारे हृदय में एक जलन होती है, एक आग जलती है, उसका नाम द्वेष होता है। जब द्वेष होता है, हमारे दिल में आग लगती है, तो हम किसी के बारे में बुरा बोलते हैं, वो द्वेष की चिंगारी है। किसी के लिए बुरा करते हैं, वो द्वेष की आग फैलने लगती है। द्वेष को संस्कृत भाषा में आश्रयास भी बोलते हैं। आश्रयास माने आश्रयम अश्नाति। जैसे आग लगती है तो जिस लकड़ी में आग लगती है उसको जलाती है, इसी प्रकार द्वेष जिस हृदय में आता है उस हृदय को ही पहले जलाता है। उसकी जो लपटें हैं, चिंगारियां हैं, वो जाकर के दूसरे को जलाते हैं, तकलीफ देते हैं। तो पहली बात ये समझना चाहिए कि अपने अंदर कोई कमी है, उसको हम जिससे पूरा करना चाहते हैं और उससे राग हो जाता है, और उसकी पूर्ति में जो बाधा डालता है उससे द्वेष हो जाता है। तो ये बहुत सावधान रहने की वस्तु है। राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन्। आप अपने व्यवहार में देखिए कि आप किसी के राग में रंग तो नहीं रहे हैं, आप किसी के प्रति द्वेष करके उससे जल तो नहीं रहे हैं। तो आप में ऐसी कौन सी कमी है जिसको पूरी करने के लिए आप दूसरे को चाहते हैं और किसी से द्वेष करते हैं? द्वेष से फिर क्रोध आता है। कम सुखम रुणद्धि इति क्रोधा। जो हमारे सुख का झरना है हमारे दिल में, उसको ये बंद कर देता है। भीतर से जो सुख निकलता है उसको ये रोकने वाली चीज है। फिर ये क्रोध जो है वो बाद में हिंसा के रूप में परिणत हो जाता है। पहले हुआ द्वेष और द्वेष से आया क्रोध
और क्रोध से आ गई हिंसा, और हिंसा फिर विद्रोह का रूप धारण कर लेती है। ये द्वेष की वंशावली है। अब रही बात राग, हमें अपने में जिसकी कमी लगती है, यदि कोई उसकी बात वही बात कह कह के हमारी तारीफ करने लगता है, प्रशंसा करने लगता है, या हमारी इच्छा जिससे पूरी होती है उससे हो जाता है राग। और राग जब होता है तब पक्षपात होता है। जिससे राग होता है उसका पक्षपात हो जाता है। फिर वो चोरी भी करता हो, बेईमानी भी करता हो, तो हम उसका समर्थन करने लगते हैं, भाई इस वजह से इसे किया है। और फिर उसको सुख पहुंचाने के लिए हम बेईमानी भी करने लगते हैं, हिंसा भी करने लगते हैं, झूठ भी बोलने लगते हैं। तो राग और द्वेष ये दोनों हमको बहुत नीचे गिराने वाली चीजें। अब आप ध्यान दें, यदि आपको अपने आत्मा का ज्ञान हो, ये तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही है, तो दूसरा है ही नहीं, द्वेष किससे होगा। और आप में कोई कमी नहीं है तो तारीफ सुन के खुश होने की कोई बात ही नहीं रहेगी। ये जो लोग दुर्गा पाठ करते होंगे कभी या सुनते होंगे, उनको मालूम होगा। और सृष्टि के आरंभ में 2 असुर पैदा हुए। वो कहां से पैदा हुए? विष्णु कर्ण मदोद भूतौ, वो कान के मैल से पैदा हुए। जिसकी हम बुराई सुनते हैं कान से, उससे धीरे धीरे द्वेष हो जाता है, और जिसकी तारीफ सुनते हैं कान से, उससे धीरे धीरे राग हो जाता है। तो राग और द्वेष ये दोनों कान के मैल है। उनका नाम है दुर्गा पाठ में मधु कैटभ। राग का नाम है मधु और द्वेष का नाम है कैटभ। और ये राग द्वेष इतने प्रबल होते हैं कि विष्णु से भी लड़ जाता है। माने जिनकी दृष्टि बड़ी व्यापक है, विवेशती इति विष्णु है, जो सारे ब्रह्मांड को अपने अंदर लेकर बैठे हैं, सारे विश्व ब्रह्मांड को अपने स्वरूप रूप से अनुभव करते हैं, वे विष्णु भी यदि किसी की निंदा और किसी की स्तुति सुनने लगे तो मधु कैटभ उनके पास आ जाएंगे और उनसे युद्ध करने लगेंगे। तो बड़ा प्रबल युद्ध हुआ। 5000 वर्ष तक मधु कैटभ दोनों के साथ विष्णु लड़ते रहे, परंतु वो दोनों मरे नहीं। और युद्ध, जीवन क्या हो गया? एक संघर्ष। जीवन क्या हो गया? एक वैमनस्य से पूर्ण। जीवन क्या हो गया? एक युद्ध। बस लड़ते जाएं। यहाँ राग आया, इसको हटाओ, यहाँ द्वेष आया, वहाँ हटाओ। ये बड़ी जल्दी जल्दी आ जाता है महाराज। उधर उत्तर प्रदेश में एक मिर्जापुर नाम का शहर है, वहाँ पहले ऐसे था कि कोई मूंछ अपनी ऐंठता हुआ सामने से आ जाए तो क्या, अच्छा हमको देख कर ऐसा करते हो, आओ 2-2 हाथ हो जाए, लग जाते थे हो। किसी ने कहा खेत में क्या बोओगे? गन्ना। नहीं भाई गन्ना मत बो, इसमें हमारी भैंस कभी चली जाएगी। तो बोले भैंस कैसे आएगी? आएगी तो हम तुम्हारा सिर फोड़ देंगे। तो देखो ये हमारी भैंस जाएगी। झूठे ही दोनों में सिर फड़ोगल हो गए। तो ये राग द्वेष जो है, जुआ खेलते समय महाराज दो भाइयों को हमने सिर फोड़ लेते देखा। दोनों सगे भाई बड़ा प्रेम, जुआ खेलने बैठ गए, हम जीते कि तुम जीते, और दोनों में लड़ाई हो गई। शराब पी लिया, पति पत्नी में ही लड़ाई हो गई।
तो ये राग द्वेष आने में कोई देर नहीं लगती है। ये कभी बिना कारण के भी आते हैं और कभी कारण से आते हैं। तो इनकी व्यवस्था जीवन में कर लेना चाहिए। पहली बात ये है, वो ये है कि इन चीजों से हम परहेज रखेंगे और इन चीजों का अपने जीवन में सेवन करेंगे। खाने व्यवस्था उसको कहते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कोई चीज बुरी है या अच्छी है, परंतु जीवन में एक व्यवस्था रहनी चाहिए कि हम ये खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये लेंगे, ये नहीं लेंगे, ये बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे। अपने जीवन में एक मर्यादा, एक व्यवस्था रखोगे तो राग द्वेष जो है उनका वर्गीकरण हो जाएगा जीवन में। अब मन में भी एक व्यवस्था रखो, ये सोचेंगे, इस ढंग से सोचेंगे और इस ढंग से नहीं सोचेंगे। राग द्वेष की संपूर्ण निवृत्ति के लिए आप राग को एक ऐसी जगह जोड़ दीजिए जो आपको आंख से देखने को नहीं मिलता है। और वो कौन है? वो भगवान है, वो ईश्वर है, वो परमात्मा है। उससे आप राग कीजिए, प्रेम कीजिए, तो उससे फायदा क्या होगा? लाभ क्या है? तो लाभ यह है कि आप संसार में किसी से राग नहीं करेंगे, उससे राग हो जाएगा। आप द्वेष भी करें तो जैसे शिशुपाल का द्वेष था, कंस का द्वेष है, और भगवान से द्वेष भी अपना जोड़ी है। तो संसार में फिर किसी से द्वेष नहीं होगा। ईश्वर के साथ जो भी मनोवृत्ति आपकी जुड़ेगी उससे आप मुक्त हो जाएंगे संसार में। अब यदि आप देखें कि ये राग द्वेष चलते कहाँ, रहते कहाँ, तो ये मन में ही रहते हैं। जब आप अपने को एक पार्टी के साथ जोड़ लेंगे तो दूसरी पार्टी से आपका द्वेष हो जाएगा। देखो आजकल राजनीति में स्पष्ट ही देखने को मिलता है ना कि हमारी पार्टी का आदमी जब चुनाव के लिए खड़ा होता है तो हम कहते हैं कि दूध का खुदा है, चाहे कितना भी बेईमान हो, और दूसरे की पार्टी का कितना भी अच्छा आदमी खड़ा हो, हम कहेंगे नहीं नहीं ये अच्छा नहीं है, इसको वोट मत देना। तो ये जो पार्टी बंदी है प्रांत के कारण है, जाति के कारण है, संप्रदाय के कारण है, भाषा के कारण है। ये जो हम अलगाव को अपने मन में रखते हैं, ये अलगाव ही अलग की हुई चीजों को दो हिस्सों में बांट देता है और एक से राग हो जाता है और एक से द्वेष हो जाता है। तो इसमें सावधान रहना चाहिए। एकमात्र ईश्वर की सृष्टि में है, सत्ता है, ज्ञान है, आनंद है, ऐश्वर्य है, माधुर्य है। प्रेम व्यवहार सब करें, पत्नी से पत्नी की तरह करें, पति से पति की तरह, पुत्र से पुत्र की तरह, माता पिता से माता पिता की तरह व्यवहार सबसे हो, परंतु राग द्वेष किसी का न हो अपने चित्त में। भगवान ने जीवन की सर्वोत्तम शैली यही बताई। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेय आत्मा प्रसाद अधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। एक तो अपनी आंख में किसी को देखने का राग न हो, कान में किसी को सुनने का राग न हो, किसी से द्वेष न हो, हाथ पांव राग द्वेष के बिना सब काम व्यवस्था पूर्वक करें और अपने बस में रखें। ये नहीं कि हम जैसे मोटर, बड़ी तेज मोटर जब चलाते हैं तो ब्रेक लगाते लगाते भी वो कुछ आगे बढ़ जाती है। जब बड़े जोर से हम दौड़ते हैं
तो अपने को रोकना चाहते हैं पर पांव को संभाल नहीं पाते हैं। तो ये जो वेग है अपने जीवन में, वो काबू से बाहर कभी नहीं होना चाहिए। न काम का वेग, न क्रोध का वेग, न लोभ का वेग। काम का वेग जब बढ़ जाता है तो जीवन में व्यभिचार आता है, लोभ का वेग बढ़ जाता है तब चोरी आती है, क्रोध का वेग बढ़ जाता है तब हिंसा आती है। इसलिए आत्मवश्य ही बोलने में इतना सावधान रहे महाराज कि झूठ न बोले। सावधान, असावधानी में नहीं बोलना चाहिए। जो हितकारी हो सो बोलना चाहिए, जो प्रिय हो सो बोलना चाहिए, थोड़े में बोलना चाहिए, मौके की बात बोलना चाहिए, आवश्यक हो तो बोलना चाहिए। केवल बोलने की आदत है, मुखम अस्ति वक्तव्य, हमारे मुंह में जीभ है इसलिए बोलते जाओ, ये कोई जीवन की प्रणाली नहीं है। इस प्रकार अपनी सारी इंद्रियां ही अपने वश में होना चाहिए और मन होना चाहिए आज्ञाकारी। कह दिया हाथ आ जा छाती पर बैठ, अब हम जब तक हटावे नहीं हटे नहीं। पांव से कह दिया बांध के आसन बैठ, जब तक हम जानबूझ के न खोलें तब तक खोलेंगे। आंख से कह दिया बंद रहे। ये सब हमारी आज्ञा में होनी चाहिए। विधेय आत्मा, ऐसी मनुष्य के जीवन में प्रसाद, प्रसन्नता अपने आप भीतर। उसको रुपया मिलने की प्रसन्नता नहीं है, उसको भोग मिलने की प्रसन्नता नहीं है, उसको अपने आप में काबू रखने की प्रसन्नता है। अपने आप में अपने आप को काबू में रखने में जो प्रसन्नता होती है, वश में रखने में जो प्रसन्नता होती है, वो और किसी भी प्रकार से नहीं होती है। तो यदि अपना मन प्रसन्न रहे तो दुनिया में कहीं भी दुख नहीं है। प्रसादे सर्व दुखाना हानिरस्य हो जाए है। दुनिया बिगड़ जाए लेकिन हम अपने दिल को क्यों बिगड़ने में, जिस दिल में परमेश्वर बैठा है। हृदय जुन तिष्ठति, सवेरे उठो, एक क्षण के लिए भगवान के साथ हाथ मिला दो। निराकार को रहने दो आज समाजियों के घर में, और निर्गुण को रहने दो वेदांतियों के घर में। खुदा ताला मुसलमानों से बात करें और गाढ़ ईसाइयों से। आप तो एक क्षण के लिए ऐसा अनुभव करो कि हम भगवान से मिल गए। उनके हाथ से हाथ मिलाओ प्रातः काल, वे आपको पकड़ के अपने हृदय से लगा लें, आपके एक सिर पे हाथ रख दें। हमारे एक ठाकुर साहब थे, सन 16 में पंचम जॉर्ज ने उनसे हाथ मिलाया था। बुढ़ापे तक महाराज वो कहते थे मेरे बराबर और कौन है, आप एक बार उठकर सवेरे ईश्वर से हाथ मिलाइए। अरे इन लोगों से हम क्या द्वेष करेंगे और इनसे क्या राग करेंगे, हमारा तो साक्षात परमेश्वर से संबंध है। किसी के लिए अपने दिल को खराब करने की क्या जरूरत है। परंतु राग द्वेष की आत्यंतिक निवृत्ति भी एक बड़ी बात है। तो सवेरे उठ के आप भगवान से तो मिलाइए हाथ और उनसे कहिए कि हे प्रभु, आज दिन भर में हमारे मन में किसी के प्रति राग द्वेष न आवे, और प्रतिज्ञा कीजिए कि 24 घंटे के भीतर तो हम किसी से राग द्वेष नहीं करेंगे। 24 घंटे के लिए प्रतिज्ञा कर लीजिए, जिंदगी भर के लिए नहीं। जिंदगी भर के लिए करोगे तो भूल जाए, याद ही नहीं रहेगा। रोज रोज करना और दिन में बीच बीच में याद आने चाहिए। और शाम को सोते समय जरा सिंहावलोकन, जैसे सिंह पीछे घूम के देखता है, सोचो कि आज दिन भर में किसी का पक्षपात मैंने किया कि नहीं। जैसे महाराज क्रिश्चन लोग जो हैं वो अपने अपने नारायण अनुयायियों के लिए छठ फोन कर देते हैं, ये चोर है तो क्या छोड़ दो, इसका काम जरा बना दो।
आपने किसी का पक्षपात किया कि नहीं किया दिन भर में? और क्या ये भाई हमसे दुश्मनी रखने वाला है, इसको कैसे भी नीचे गिराओ, इसका तबादला कर दो, इसको यहाँ से वहां भेज दो, इसको इसकी उन्नति रोक दो या नीचे गिरा दो। ये काम आपने किया कि नहीं? सोच लो शाम को, और यदि किया हो तो भगवान से क्षमा मांगो। ये संध्या वंदन के मंत्र में ये बात रोज रोज बोलने की आती है। आप यदि हस्तदवलुम पतु रात्रिश तदवलुम पतु जदन्ना पाप मकार सम, और क्या है, मनसा वाचा हस्ताभ्याम पदभ्याम उदरेण शिष्णा अहस्तदवलुम पतु रात्रिश तदवलुम पतु। रोज रोज हमारे जीवन में कोई दोष ना आने पावे और हमारे गुण जो है जीवन में वो बने रहें, इनके लिए प्रतिदिन सावधान होना चाहिए। ये अभिमान कभी नहीं करना चाहिए कि ये दोष अब हमारे जीवन में नहीं आवेगा, और नारायण ये गुण हमेशा बना रहेगा। काशी में एक महात्मा थे, रोज गंगा स्नान करने के लिए जाया करते थे। तो एक वेश्या का घर पड़ता था रास्ते में, वो निकल के बाहर आ जाते और बोलती, महात्मा जी कच्चे की पक्के। वो हंस के चले जाते। जिंदगी में ऐसा किया, लोग कह रहे हैं ऐसा। चौक की कोतवाली के पास उसका घर था। तो एक दिन मालूम हुआ कि महात्मा जी मर गए और उनकी अर्थी निकल के जा रही है। तो वेश्या निकल आई अपने घर में से, मेरे सवाल का जवाब दिए बिना मर गया। तो महात्मा जी महाराज जिंदा हो गए और बोले कि मैं पक्का हूं। कैसे? जब तक शरीर था तब तक हमसे कोई गलती हो सकती थी, हम अपने को पक्का कैसे कहते? अब हम जा रहे हैं स्मशान पर, बिल्कुल पक्के हैं, ठीक ठीक जा रहे हैं। तो भाई जब तक शरीर रहे तब तक असावधान नहीं होना चाहिए। गलती मन में रहती है, उसके लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। यदि आपके मन में काम की वृत्ति आवे, एकांत में आवे, तो लोगों में चले जाइए, और लोगों में आवे तो एकांत में चले जाइए। उपनिषद पढ़िए, गीता पढ़िए, थोड़ी देर के लिए प्राणायाम कर लीजिए, 1 मिनट का प्राणायाम कर लीजिए, भगवान का नाम लेने लगिए, मौन हो जाइए, अपने ऊपर जुर्माना पहले से करके रखिए कि यदि क्रोध में कुछ बोलेंगे, काम बस यदि किसी को छुएंगे तो 1 सप्ताह चाय नहीं पिएंगे। दूध नहीं पिएंगे, शक्कर नहीं खाएंगे। देखो उस समय चाय की प्याली आपके सामने आएगी और कहेगी कि प्यारे मुझे छोड़ रहे हो। ये गुस्से में आकर के तुम मुझे छोड़ रहे हो, माने वृत्त्यंतर हो जाएगा, दूसरी वृत्ति आपके मन में आ जाएगी, तो राग द्वेष शिथिल पड़ जाएगा। भगवान से प्रार्थना कीजिए, भगवान के सौंदर्य माधुर्य को देखिए, अपनी प्रीति भगवान के साथ जोड़िए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो जागृत छोड़कर स्वप्न में जाता है और जागृत स्वप्न दोनों को छोड़कर सुषुप्ति में जाता है और सुषुप्ति को छोड़कर स्वप्न और जागृत में आता है, ये आत्मा महाराज इसकी प्रयोगशाला, इसका ऑफिस तो है जागृत अवस्था, यहाँ अच्छा बुरा काम करता है, ये ऑफिस है, और प्रयोगशाला है, लेबोरेटरी है इसकी स्वप्नावस्था। आप में कितनी ताकत है आप जानते हैं? आप समुद्र बना लेते हैं सपने में, हिमालय बना लेते हैं, सूर्य चंद्रमा बना लेते हैं, वहां ईश्वर परमेश्वर बना लेते हैं। कौन बनाता है? आपका मन। आपकी वो ताकत जागृत में कहाँ चली जाती है? जो सपने में आपके अंदर ही है। और फिर जागृत और स्वप्न
दोनों को समेट कर सुषुप्ति में आप शंकर जी के समान सो जाते हैं। आप ब्रह्मा जी के समान सपने में सृष्टि बना लेते हैं। आप विष्णु के समान जागृत अवस्था में सारा व्यवहार करते हैं। ये जो आपके भीतर शक्ति छिपी हुई है वो कहाँ से आती है? आप वो हैं जो सारे जगत का पालन कर सकते हैं। आप वो हैं जो नई सृष्टि की रचना कर सकते हैं। आप वे हैं जो सारी सृष्टि का संहार कर सकते हैं। आपके भीतर वो ईश्वर हृदय तिष्ठति, आप उस परमेश्वर से एक हैं। तो नारायण, आप हमारी बात सुनकर कुछ हिचकिए मत। हिचकने से ही आपकी शक्ति क्षीण हो जाती है। देखो, एक बार हम दिल्ली से चले तो हमको किसी ने सेकेंड क्लास का टिकट दे दिया था। 40 वर्ष पहले की बात है, बल्कि 45 से। तो जब ट्रेन पर गए तो उसमें सेकेंड क्लास नहीं था। तो हमने सोचा कि फर्स्ट क्लास में बैठ जाए। बैठ के टीटीआई आया, टिकट तो तुम्हारा सेकेंड क्लास का है। अच्छा भाई, तुम ले चलो, हमको बैठा दो, हम तैयार हैं। नहीं मिला तो उसने हमारे डब्बे पर लिख दिया हो कि ये फर्स्ट क्लास है, ये सेकेंड क्लास है। फर्स्ट क्लास का सेकेंड क्लास हो गया, अद्भुत। उसने लिख दिया उसको, ये सेकेंड क्लास है। अब हमने सोचा हिचको मत, है ना। हमारा ब्रह्मचारी कहीं स्टेशन पर, सोमनाथ स्टेशन पर गाड़ी खड़ी हुई, पानी लेने के लिए कुएं पर गया, गाड़ी चल पड़ी। मैंने जंजीर खींच दी हो, हिचको मत। गाड़ी खड़ी हो गई, गार्ड साहब आए, टिकट ले गए। हम लोग खूब मौज से चलते रहे, अपने आप ही फिर लौटा दिए, कुछ बोले नहीं। उतरे, 9 मील दूर जाना था, अंधेरा हो गया। हमने कहा हिचको मत, चल करो। बैलगाड़ी कोई आई, रास्ते में हमको बैठा के वहां पहुंचा दिया। रात को हमको मालूम था हमारे लिए रहने की जगह कहाँ है, ताला बंद था उससे। मैंने कहा हिचको मत। जो ताले पर हाथ लगाया तो नकली था, खुल गया। हिचको मत बोला। इंटरव्यू के लिए कई इंजीनियर बुलाए गए और इंटरव्यू लेने वाला साहब आके बाहर कुर्सी पर बैठ गया। बोले भाई क्या करें, ऑफिस का ताला बंद है, चाबी नहीं है। नारायण, अभी खुलता नहीं ताला, तो हम भीतर कैसे बैठे, इंटरव्यू कैसे लें। अब सब विद्यार्थी भी, इंटरव्यू देने वाले भी हक्के बक्के देख रहे, अब क्या करना होगा। जब लोगों को कोई उपाय नहीं सूझा तो उनमें से एक विद्यार्थी उठ के खड़ा हुआ और जाके उसने ताले पर हाथ लगाया तो ताला तो बंद ही नहीं था, वो तो खुला हुआ था, खुल गया। साहब ने कहा कि हो गया इंटरव्यू, इसी के लिए हम बाहर बैठे थे। तो भाई दुनिया में ये जो तुम्हारे मन में समस्याएं पैदा होती हैं, जो दुख आता है, जो उलझने आते हैं, उसमें तुम जब घबरा जाते हो कि कहाँ पांव रखें, इसी से तुम्हारे जीवन में दुख आता है। असल में तुम्हारी शक्ति ईश्वर की शक्ति है। तुम्हारा आत्मा साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। तुमको दबा देने वाला, गलत जगह पर ले जाने वाला कोई दूसरा नहीं है। तुम अपने को स्वयं नीचे गिराते हो। इसलिए सावधान, अपने स्वरूप को संभालो और देखो सृष्टि में आनंद ही आनंद है, कहीं भी दुख नहीं है। किसी के आने से, किसी के जाने से, किसी के विश्वासघाती होने से, मरने से, जीने से कहीं भी दुख नहीं है। आप अपने मन को सत्संग के द्वारा इतना सुरक्षित कर लो, इतना सशक्त कर लो, इतना क्षम बना लो कि दुख तुम्हारे मन में घुस ही न सके। हमारी अध्यात्म विद्या आपके दुख की निवृत्ति के लिए है, आपके आलस्य की, जड़ता की निवृत्ति के लिए है। ये आपको परमानंद
देने के लिए है और आपको अविनाशी जीवन, अमर जीवन देने के लिए है। आप देखो, समुद्र में आनंद की तरंगे उठ रही हैं, नदी में और आनंदमयी रसधारा बह रही है। बदुक बातारितायते, हवा में आनंद बह रहा है। सूर्य चंद्रमा की किरणों से आनंद की वर्षा हो रही है, आनंद के फुहारे उठ रहे हैं। केवल अपने मन की ये गलती है, अपनी बुद्धि की गलती है, केवल ये धोखा है जो अपने को दुख जीवन में मालूम पड़ता है। इसी को दूर करने के लिए सत्संग की और आत्मज्ञान की आवश्यकता होती है। ओम शांति।